Hello friends, you are most welcome here at this platform, English with Sanjay Kumar. Friends, in previous two videos we have discussed about William Shakespeare's biography and works, and these were very most important key facts as I named it bullet points on William Shakespeare. So it is the third video where we will discuss at least 20 most important key facts regarding William Shakespeare and his works. So let us move ahead. जैसा कि पिछले दो वीडियोस में हमने विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी और उनके वर्क से संबंधित 40 की पॉइंट्स डिस्कस किए, और आज का ये तीसरा वीडियो होगा जो कि एटलीस्ट 20 points will be discussed here in this video. So now let us start the session, today's session, and it's point number 41. How many sonnets are dedicated to Mr. W.S.? So its correct answer will be 126. जैसा कि यू नो विलियम शेक्सपियर ने मिस्टर W.S. को 126 सॉनेट डेडिकेट किया था। जैसा कि हमने पहले भी बताया है और आप सभी लोग जानते भी हैं बढ़िया इस बात को कि विलियम शेक्सपियर ने 154 सॉनेट्स लिखे and 37 plays, 37 plays in all. And if we talk about 154 sonnets, these sonnets were dedicated to two great personalities of the time, as it was the handsome young man called Mr. W.S., to whom William Shakespeare dedicated 126 sonnet. मिस्टर W.S. को विलियम शेक्सपियर ने 126 सॉनेट्स डेडिकेट किए, एंड सेकेंड dedication of sonnet from 27 to 152, or in other words we can say 26 sonnet, remaining 26 sonnets are dedicated to an Italian dancer in the court of Elizabeth called Dark Lady, having dark eyes, and the rest two sonnets, sonnet number 153 and 154, are dedicated to love god Cupid. So these were very most important uh, facts regarding sonnets by William Shakespeare. And now we will discuss next point. How many sonnets are dedicated to Dark Lady? As I have already discussed about it. How many sonnets are dedicated to love god Cupid? Two sonnets. Two last sonnets, sonnet number 130, 153 to 154. And the next point is here. अगले पॉइंट पर आते हैं. रेप ऑफ लुक्रीस ए लॉन्ग नैरेटिव पोएम. अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, विच काइंड ऑफ पोएम इज रेप ऑफ लुक्रीस इज. तो आंसर रहेगा इट्स ए लॉन्ग नैरेटिव पोएम. एंड इफ वी टॉक अबाउट इट्स written date, question can be asked in this way as Rape of Lucrece is a long narrative poem, and when it was written, when Rape of Lucrece was written, in this way question can be asked. So its correct answer will be 1594. Now we will move to the next question, next key point, and it is
45. To whom Rape of Lucrece was dedicated? रेप ऑफ लुक्रीस किसको डेडिकेट किया गया था? रेप ऑफ लुक्रीस जो ये टॉपिक था, किसे डेडिकेट किया गया था शेक्सपियर के द्वारा? तो आंसर हो जाएगा मिस्टर WH विलियम हर्बर्ट, या हेनरी योत्सले भी इन्हें इस नाम से भी जाना जाता है। तो रेप ऑफ लुक्रीस वाज dedicated to Mr. WH. Now we will move to the next point, and it is point number 46. Point number 46. Rape of Lucrece was written in line or stanza form. तो रेप ऑफ लुक्रीस को राइम रॉयल स्टैंजा फॉर्म में लिखा गया था। इसी को हम 7 लाइन स्टैंजा फॉर्म भी कह सकते हैं। राइम रॉयल इज द स्टैंजा फॉर्म ऑफ 7 लाइन। रेप ऑफ लुक्रीस को राइम रॉयल स्टैंजा फॉर्म में लिखा गया था। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस फॉर्म में लिखा गया था? इन विच फॉर्म रेप ऑफ लुक्रीस वाज रिटन? तो इट्स आंसर विल बी राइम रॉयल। And one more interesting point regarding rhyme royal is it is here, point 47. Rhyming scheme of rhyme royal stanza form is what? तो आंसर हो जाएगा AB AB BCC. It is the rhyme scheme of rhyme royal stanza. As you know, it is 7 line stanza. And one more important things regarding rhyme royal, it is in iambic pentameter. So these were the very most important key points regarding rhyme royal. Now let us move to the next point. It is point number 48. Rape of Lucrece is written in total what? क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, रेप ऑफ लुक्रीस कितने लाइन में लिखी गई है, कितने लाइन की पोएम है? या रेप ऑफ लुक्रीस हाउ मेनी लाइन्स ऑफ द पोएम रेप ऑफ लुक्रीस इज? तो इट्स करेक्ट आंसर विल बी 1855 लाइन्स। रेप ऑफ लुक्रीस 1855 लाइन की पोएम है। और इफ वी टॉक अबाउट इट्स डिवीजन, it has been divided into 265 स्टेंजास। इसको 265 स्टेंजाज में डिवाइड किया गया है, स्टेंजाज में। एंड दीज स्टेंजाज आर ऑफ 7 लाइन ईच, और हर एक स्टेंजा 7 लाइन का है। जैसा कि रेप ऑफ लुक्रीस राइम रॉयल स्टेंजा फॉर्म में लिखी गई है, उसी के संबंध में ये बात है। राइम रॉयल स्टेंजा इज 7 लाइन, is of 7 line, and this is why rape of Lucrece, if we talk about its complete lines, in how many lines rape of Lucrece has been written, its answer will be 1855. And if we talk about its division, it is 265 stanzas in all, and there will be one stanza is of 7 lines. 7 line stanzas is called rhyme royal in short. Now let us move to the next question. आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 49. रेप ऑफ लुक्रीस इज ए व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी? रेप ऑफ लुक्रीस इज ए व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी? किस प्रकार की स्टोरी है रेप ऑफ लुक्रीस? एज यू नो इट इज़ लॉन्ग नैरेटिव पोएम। तो कैसी पोएम है, इसे अगर पूछा जाए, ऑप्शन कई दिया जा सकता है। तो इसे हम कहेंगे
ए ट्रेजिक स्टोरी ऑफ लुक्रीस हु लॉस्ट हर virtues बाय हर रिलेटिव्स। एक ट्रेजिक स्टोरी है रूपा रेप ऑफ लुक्रीस। एक ट्रेजिकल स्टोरी है जो लुक्रीस है, सी लॉस्ट हर virtue बाय हर रिलेटिव्स। इट्स करेक्ट आंसर। एंड नाउ पॉइंट नंबर 50। व्हाट काइंड ऑफ पोएम इज फिनिक्स एंड टर्टल? एज if we talk about its kind, what kinds of poem is phoenix and turtle, कैसी पोएम है? तो इसे हम कहेंगे एन एलिगोरिकल पोएम। फिनिक्स एंड टर्टल इज एन एलिगोरिकल एलिगोरिकल पोएम and it is included in Robert Chester's collection Love's Martyr 1601। ये रॉबर्ट, इसको किसमें शामिल किया गया था? रॉबर्ट चेस्टर्स कलेक्शन लव्स मार्टीर जो कि 1601 में आई थी। और भी यदि हम इस टर्टल के विषय में बात करें, व्हाट इज टर्टल इन द पोएम लॉन्ग नैरेटिव पोएम फिनिक्स एंड टर्टल? तो ऑप्शन जैसे दिया जा सकता है, इट्स अ बर्ड, इट्स एन एनिमल। ऑप्शन कई दिए जा सकते हैं। टर्टल से जैसे कुछ लोग अनुमान लगाएंगे कि हो सकता है ये क्या हो। टर्टल इट्स एन वाटर एनिमल, तो इट्स नॉट दैट टर्टल, इट्स अ बर्ड। टर्टल मीन्स here turtle signifies a bird in this poem phoenix and turtle. So it was the most interesting and important key fact regarding this लॉन्ग नैरेटिव पोएम। तो आइए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर हो जाएगा 51। पॉइंट नंबर 51 आइए देखते हैं। व्हाट काइंड्स ऑफ कह भी सकते हैं, कैसी है, किस प्रकार की है। अ पोएम ए लवर्स कंप्लेंट, सॉरी, कैसी पोएम है? तो इसे हम कहेंगे इट इज इन राइम रॉयल स्टैंजा एंड ए रस्टिक पोएम। इसका पहला आंसर हो जाएगा व्हाट काइंड ऑफ पोएम ए लवर्स कंप्लेंट, तो आंसर हो जाएगा ए रस्टिक पोएम। इट इज ए रस्टिक पोएम, ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है या इसे रस्टिक है। एंड इफ वी टॉक अबाउट इट्स स्टैंजा फॉर्म, इट इज रिटन इन राइम रॉयल स्टैंजा फॉर्म, 7 लाइन स्टैंजा फॉर्म। As we have discussed previously, Rape of Lucrece has also been written in rhyme rally stanza form, and A Lover's Complaint is also has also been written in the same stanza form। दोनों एक ही स्टेंजा फॉर्म में लिखी गई हैं, जो कि राइम रॉयल स्टेंजा फॉर्म के नाम से जाना जाता है, 7 लाइन स्टेंजा फॉर्म में। अब आइए देखते हैं आगे। पॉइंट नंबर 52। टर्म ब्लैक ह्यूमर वाज कॉइंड बाई whom? Who coined? अब क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, हु कॉइंड द टर्म ब्लैक ह्यूमर? 1 मिनट। हु कॉइंड द टर्म ब्लैक ह्यूमर? तो हमारा आंसर हो जाएगा द सरेलिस्ट थियरिस्ट एंड्रे ब्रेटन। इन्होंने कॉइन किया था इस ब्लैक ह्यूमर थियरी को, टर्म को। इट्स ए लिटरेरी टर्म एंड कॉइन्ड बाय एंड्रे ब्रेटन इन 1935। 1935 में एंड्रे ब्रेटन ने इसको कॉइन किया था। एंड आई थिंक it's very important from exam points of view to remember this point, as it can also be asked in upcoming exams. It's a new question
and not new, but it's very important from exam points of view, as far as uh, the level of question paper in upcoming time, in next exam. Probability, it's there is a strong probability of this question to be asked in upcoming exams. So this point should be remembered. Now let us move to the next point, and it is point number 53. Shakespeare started his dramatic career. जैसा कि हमने ऑनलाइनर पॉइंट तैयार किया हुआ है, आसान हो जाएगा, एंड की फैक्ट्स है, काफ़ी मेहनत लगी है इसको तैयार करने में। या तो इसको ऐसे भी क्वेश्चन इसका बनाया जा सकता है, शेक्सपियर स्टार्टेड हिज ड्रामेटिक करियर, इस तरह से पॉइंट है। व्हेन डिड शेक्सपियर स्टार्टेड हिज ड्रामेटिक करियर, और शेक्सपियर ने अपने ड्रामेटिक करियर को कब स्टार्ट किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1588 was the time when Shakespeare started his career as a dramatist. And यदि बात की जाए कि when he ended his dramatic career, तो its correct answer will be 1612। और 1612 में जानते हैं कौन सा ड्रामा इनका आया था, द टेम्पेस्ट आया था, द टेम्पेस्ट। My writing is not very beautiful, so avoid it. Now let us move to the next question. Point number 54. How many plays were written by Shakespeare? It's very easiest question and important as well. It has been asked many times in previous year exams. So its correct answer will be 37. शेक्सपियर ने टोटल कितने प्लेस लिखे थे, तो आंसर हो जाएगा 37 प्लेस। और एक महत्वपूर्ण बात है कि एक कौन सा प्ले था जो फर्स्ट फोलियो में डिस्कस नहीं किया गया था, तो अभी उसके विषय में हम आगे बात करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 56। एट द टाइम ऑफ शेक्सपियर्स डेथ, शेक्सपियर की मृत्यु के समय, हाउ मैनी प्लेस वेयर एग्जिस्टेड इन मैन्युस्क्रिप्ट, कितने प्लेस मैन्युस्क्रिप्ट या हुए थे, मैन्युस्क्रिप्ट में एग्जिस्ट थे या लिखे गए थे, जो पाए गए, लिखे हुए पाए गए। तो हाउ मैनी प्लेस वेयर existed in manuscript before at the time of Shakespeare's death, तो आंसर हो जाएगा 21 प्लेस। ऐसा प्रमाण मिला है कि उनकी मृत्यु के समय एट द टाइम ऑफ शेक्सपियर्स डेथ 21 प्लेस वेयर एग्जिस्टेड इन मैन्युस्क्रिप्ट। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 57। The first printed collection of William Shakespeare's plays now called, the first printed collection of Shakespeare's plays, विलियम शेक्सपियर के प्लेस का जो पहला प्रिंटेड कलेक्शन आया था, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा द फर्स्ट फोलियो। फर्स्ट फोलियो नाम से जाना जाता है और आया था 1623 में। इट केम इन 1623। फर्स्ट फोलियो 1623 में आया था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हाउ मैनी प्लेस वेयर एग्जिस्टेड इन दैट फोलियो, तो आंसर हो जाएगा 36, जो कि अभी हम अगले पॉइंट में जिसके विषय में बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट।
पॉइंट नंबर 58, द फर्स्ट फोलियो वाज द कलेक्शन ऑफ हाउ मेनी प्लेस, तो इट्स आंसर विल बी 36 प्लेस आउट ऑफ 37। जो फर्स्ट फोलियो था इनका विलियम शेक्सपियर के प्लेस का जो फर्स्ट फोलियो का जो कलेक्शन था, जो आया था 1623 में आया था, वो कितने प्लेस का कलेक्शन था, तो आंसर हो जाएगा ये 30 प्लेस के का कलेक्शन था। 30 प्लेस वेयर इंक्लूडेड इन फर्स्ट फोलियोज एंड वन वाज ओमिटेड, इट मीन्स 36 प्लेस थे फर्स्ट फोलियो में, एक प्ले को शामिल नहीं किया गया था, उसका नाम था पेरिकिल्स, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे अगले पॉइंट में। तो पॉइंट नंबर 59, आइए देखते हैं, विच प्ले वाज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो। आ गया क्वेश्चन, विच प्ले वाज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो। जैसा कि हमने पहले बात किया, आप लोगों को जानना चाहिए इसे, कि फर्स्ट फोलियो आया था 1623 में आया था, और इसमें 36 प्लेस को शामिल किया गया था उस समय। और एक ऐसा कौन सा प्ले था जो उस समय इस फर्स्ट फोलियो में शामिल नहीं किया गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा पेरिकिल्स। अब यह तो हो गया, शामिल नहीं किया गया था उसको, लेकिन और इंटरेस्टिंग पॉइंट और है आगे, जो अभी हम बताएंगे, आपको जानना चाहिए आप लोगों को। आइए जानते हैं पॉइंट नंबर 60, पेरिकिल्स वाज प्रिंटेड अलॉन्ग विद द फोलियो। किस फोलियो में आया था, तो आया था 1664 टू 1665। पहला फोलियो आया था 1623 में, दूसरा आया था 1632 में, और तीसरा आया था इसमें 1664 में, सॉरी, फर्स्ट फोलियो इनका आया था 1623 में आया था, सेकेंड आया था 1632 में आया था। और ये बताते हैं तीसरा फोलियो कब आया था। द थर्ड फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस केम इन 1663 and Pericles was printed along with the second edition of third folios in 1664 to 1665, and fourth and last folio of Shakespeare plays came in 1685. 1685. So these were the famous four folios of Shakespeare's plays that came one by one, and there are many other things, many other important things regarding folios, but we will discuss in these points in another video, and I hope you will like this session. And if this session proves to be beneficial for you, please don't forget to like, share and subscribe my channel. And if you are new viewer on this channel at this platform, please subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest notification as soon as it is published. तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही
इंटरेस्टिंग एंड वेरी इम्पोर्टेंट सेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक कंटिन्यू योर स्टडी, योर प्रिपरेशन, and very soon I will come back with another video. जय हिंद।